Good morning, dear students. Today we are going to start with the new chapter, that is enhancement of food production. Now, what is mean by enhancement? Enhance karna means increase to increase the food production. Okay, so now सबसे पहले in this chapter we are going to learn about how to increase or how to improve in the food production. As we know, we are living in a country like India. India is the second most populated country among world, and due to the increased population, and as we know our population is goes on increasing day by day. So due to this increased population, we need some improvement in food production. We need some improvement in the crop yielding or crop production, so that we are using different terms, or we are using different technique, different biotechnological technique to improve our food production or to increase the yield. Okay, now as we know, food is one of the basic need, as it gives us energy for everything. Everybody use food, or everybody eat food, either they're from India or from any of the country. It keeps us alive, strong and healthy. It can be defined as anything solid or liquid which when swallowed, digested and assimilated in the body. Okay, it is organic, very energy rich compound, non poisonous, edible, and which is going to nourish our body. You know what, only the green color plant or the photosynthesis plant, or the plant those who can perform photosynthesis, they can prepare their own food. But animals and we humans, we cannot prepare our own food, because due to the lack of chloroplast or chlorophyll pigment. So now famine is responsible for the dearth of food, beside the rapid and dramatic increase in world population over the time. So to meet the increasing demand for food, there is need for improvement of food production, both quantity wise and quality wise. So we are going to study the plant breeding and animal breeding in detail in this chapter. First of all, we are going to study with the plant breeding. What is meant by breeding? Breed करना means grow करना, बढ़ावा देना. So plant का grow करना faster rate में plants को बढ़ावा देना. The improvement or purposeful manipulation in the heredity of crop and the production of new superior varieties of existing crop plant constitute what is called plant breeding. See, हम लोग देखते हैं कि इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी. इट इज़ इन फैक्ट एन आर्ट एंड द साइंस ऑफ चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ द प्लांट. Plant breeding can be carried out by using the application of principles of genetics, genetic taxonomy, physiology, pathology, agriculture, rDNA technology, recombinant DNA technology. You know what? What is plant breeding? Plant breeding is a method of altering the genetic pattern of the plant, means to improve their quality as well as of quality as well as of quantity. Means उनके अंदर alteration करना, manipulation करना in the genes में manipulate करना to increase the crop yield, increase the quality, to increase the tolerance to the environmental stress like salinity, drought, सूखा खारापन, ये सबको टॉलरेट करने के लिए. ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज द रिजल्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक ब्रेक थ्रू एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज दैट सक्सेसफुली फॉट हंगर बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. Seeds with superior quality, use of chemical, pesticide, fertilizer and multiple cropping system, supported by the use of modern farm machinery and proper irrigation system, which help for the development of high yielding and disease resistance variety in wheat, rice, maize, etc. So there are different methods of plant breeding, include introduction, selection, hybridization, mutation breeding, polyploidy breeding, molecular plant breeding, tissue culture, rDNA technology. Selection, select करना, hybridization, दो different qualities, quantities को आपस में मिलाना. फिर
म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटेशन मीन्स सडन चेंजेस. पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी जहाँ पे जीन्स में बहुत सारे, एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन्स ऐड करना. मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग जहाँ पे हम लोग डीएनए और आरएनए को लेके वर्क करते हैं. टिश्यू कल्चर, where we extract or isolate tissues from the plant body and we grow them in a chemical in a suitable environmental condition in a laboratory, और जहाँ पे एक टिश्यू से we can make millions of tissues. आर डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया यूज़ करके अंदर डीएनए को इंसर्ट करके हम लोग ग्रोइंग कराते हैं. एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, मतलब एक सेल लेकिन उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा. Okay, now so iske after that we are going to study, you know what, Dr. Norman E. Borlaug, he was the American biologist. He was called as the father of green revolution, like Gandhi ji is called as the father of nation. Norman E. Borlaug was called as the father of green revolution. See, he was the man who saved 1 billion lives. Dr. Borlaug, he got a Nobel Prize in the year 1970 from the Mexico, Middle East. Dr. M.S. Swaminathan, he has been called the father of green revolution in India because he also developed the high yielding variety of wheat in India. He advocated moving India to sustainable development, especially using environmentally sustainable agriculture, sustainable food security and the prevention of biodiversity. उन्होंने biodiversity prevent करने के बहुत सारे ideas दिए. He is pioneer in mutation breeding in India. He developed new varieties of wheat like Sonora, NP 165, Sarbati. ऐसे these are the varieties of wheat, names of wheat. Now after that, hybridization, first of all, means plant breeding. What are the different steps of plant breeding? So you can see here, first steps of plant breeding, that is what, collection of variability from germplasm or gene bank. वेरिएबल्स को कलेक्ट करना बताऊंगी मैं. इवोल्यूशन एंड सेलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सेलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट विद डिफरेंट क्वालिटी, सेलेक्टेड पेरेंट सेल फॉर 3 to 4 जनरेशन टू मेक देम होमोजाइगस फॉर ट्रू ब्रीडिंग. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट एज मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, collection of pollen grain from the flower of male parent, removal of stamen from the flower of female parent, artificial cross pollination by using pollen grain collected from male parent, bagging tagging of the emasculated flower of female parent, development of fruit and seed, selection and testing of F1 hybrid for combination of desirable character, field trials for yield, testing and release of variety. Now, so abhi first of all we are going to study with what is hybridization. Hybridization का मतलब होता है combination of 2 or more varieties, combination of 2 or more characters. Okay, so we can create new genetic combination of already existing character and new genetic variation. It also exploit and utilizes hybrid vigor. Hybridization can be intravarietal and can be intervarietal. Intervarietal का मतलब होता है in between varieties of the same species, और intra का meaning होता है in between varieties of the 2 different species. इंटरजेनरिक का मतलब होता है in between 2 genera of the same family, और इंट्राजेनरिक का मतलब होता है in different 2 different Interspecific and intergenic hybrids are seldom to occur in the nature. Okay, अभी there are different hybridization में हम लोग क्या करते हैं, different qualities और 1 quality plus 1 quantity, ऐसे 2 different varieties को आपस में mix करके same बनाते हैं. For example, potato plus tomato is equal to pomato, is equal to what? Pomato. Potato plus tomato is equal to what? Pomato. Okay.
Now, अभी the main steps of plant breeding. First, collection of variability. Variability means variable, differences, अलग अलग varieties. तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, this is also called as the germ plasm collection. मतलब जहाँ पे हम लोग अलग अलग सीड, अलग अलग जीन्स, इन सब को कलेक्ट करते हैं in the following ways. In situ conservation and ex situ conservation. इन सिटू का मतलब होता है इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व। एक्स सिटू का मतलब होता है इट कैन बी डन थ्रू बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक एक्सेट्रा। फिर देन इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्टेप। इवैल्यूएट करना मतलब स्क्रीन करना होता है टू आइडेंटिफाई प्लांट विथ डिज़ायरेबल कैरेक्टर। मीन्स जो भी सेलेक्टेड पेरेंट रहते हैं हम लोग को उनका जैसे कि एग्ज़ाम होने, जैसे कि एक चैप्टर पढ़ाने के बाद टीचर आपको असाइनमेंट देती है या टीचर आपको क्वेश्चन पूछती है जस्ट टू इवैल्यूएट वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। तो ऐसे इसको इवैल्यूएट करना है कि अपना डिज़ायरेबल कैरेक्टर इसमें है कि नहीं जो हम लोग चाहते हैं। ओके, सेलेक्टेड पेरेंट्स आर सेल्फ फॉर 3 to 4 जनरेशन टू मेक देम प्योर और होमोजाइगस। जो सेलेक्टेड पेरेंट हैं उनको सेल्फिंग कराते हैं आपस में, जैसे कि ये XX है, ये YY है, ये एक वैरायटी, ये दूसरा वैरायटी। तो इसका आपस में कराएंगे तो X मिलेगा, फिर से X मिलेगा, फिर से X मिलेगा, X मिलेगा। इसका आपस में कराएंगे तो Y मिलेगा, फिर से YY मिलेगा, फिर YY का कराएंगे तो फिर YY, इनका आपस में मीटिंग कराएंगे तो YY। तो व्हाट इज़ दिस? तो दिस इज़ नथिंग बट दी, मतलब इनका आपस में स्क्रीनिंग कराना, प्योर लाइन मेंटेन कराना, होमोजाइगोसिटी मेंटेन कराना फॉर 3 to 4 जनरेशन। ओके ना, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है द वैरायटी शोइंग मैक्सिमम डिज़ायरेबल फीचर इज सेलेक्टेड एज फीमेल पेरेंट एंड अनदर वन मेल पेरेंट विच लैक गुड कैरेक्टर फाउंड इन रिकरेंट पेरेंट। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे 3-4 जनरेशन आ गए उसमें से एक प्रॉपर हम लोग जो हमको लगेगा अच्छा मेल चूज़ करेंगे, एक फीमेल चूज़ करेंगे, फिर इनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो मिलेगा XY, या तो फिर अगेन XY, इस तरह से। ओके, देन सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर की रिकॉम्बिनेंट। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जैसे मेरे को जो XY लिया था मैंने, तो यहाँ पे भी यहाँ पे XX लिया था, यहाँ पे XX, यहाँ पे YY। तो ये हमने पेरेंट सेलेक्ट किए थे। अब इनका कराया तो मुझे मिला XY, तो ये हो गया मेरा सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अगेन कॉम्बिनेंट मतलब जिसमें कंबाइन है, ठीक है, X भी है Y भी है, दोनों कैरेक्टर है, क्वालिटी हो गई है, क्वांटिटी हो गई। फिर टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, इसको रिलीज करेंगे और इसका मतलब इसको कमर्शलाइजेशन के लिए, मतलब इसको मार्केट में भेजेंगे इसको बेचने के लिए, जिससे हमको अर्निंग हो सके। ओके, जिसमें टेस्टिंग करेंगे मतलब इसमें हम लोग वाटर का फैसिलिटी, फर्टिलाइज़र, ये सब चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। ये सब किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन में। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद द इंडियन हाइब्रिड क्रॉप। अब ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद इंडिया में कौन कौन से हाइब्रिड वैरायटी के क्रॉप्स अवेलेबल हैं। तो 1960 में वीट एंड राइस का प्रोडक्शन ट्रिमेंडसली हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। नॉर्मन ई बोरलॉग डेवलप सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट लाइक सोनालिका एंड कल्याण सोना। ओके, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के राइस है IR8 इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ताईचंग नेटिव ताइवान से लिया था, नेटिव 1। और इंडिया में प्रोडक्शन कराया था राइस का जया, पद्मा, रत्ना, और वीट का प्रोडक्शन शरबती, सोनोरा, फिर सोनालिका, कल्याण सोना।
देन साथ ही साथ शुगर केन का भी प्रोडक्शन कराया था, हाइब्रिड वैरायटी का। यू नो व्हाट, सखरम बारबेरी ये नॉर्थ इंडिया में मिलता है और सखरम ऑफिसिनारम बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। जो ऑफिसिनारम है उसकी स्टेम बहुत थिक होती है गन्ने की, शुगर केन की, और हाई शुगर कंटेंट होता है, बट वो नॉर्थ में वेल ग्रो नहीं कर सकता। और जो नॉर्थ में मिलता है सखरम बारबेरी, वो नॉर्थ में जो मिलता है उसका स्टेम इतना थिक नहीं होता, पतला होता है, और जिसमें शुगर कंटेंट हाई नहीं होता, मीन्स नो क्वालिटी। ओनली हियर बारबेरी में क्वांटिटी, ऑफिस सिनारम में क्वालिटी। तो अब हमको क्वांटिटी प्लस क्वालिटी वी रिक्वायर बोथ। सो नाउ दिस टू वराइटीज़ वर क्रॉस टू गेट द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ वो बोथ। फिर वी गेट शुगर कंटेंट एज वेल एज ऑफ थिकर स्टेम, as well as of the we get sugar content as well as of the this one, हमको शुगर भी मिला और क्वालिटी भी मिली प्लस क्वांटिटी भी मिली। नेक्स्ट आता है मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है? सी सबसे पहले हाइब्रिड मेज गंगा 3 जवार एंड बाजरा हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया। दीज वराइटीज ऑफ हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस। ना इसके बाद वी आर डूइंग प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिसीज़ रेजिस्टेंस। जैसे कि प्लांट को भी बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, सम फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, लाइक ब्राउन रस्ट ऑफ वीट। वीट के ऊपर ब्राउन रस्ट जंग लग जाती है रेड कलर की। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने के बीचों बीच में आप गन्ने को फाड़ोगे, किसी किसी गन्ने में आपको रेड रेड अंदर दिखेगा। ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स जो भी झाड़ी वाले जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें ब्लैक ब्लैक रॉटनिंग होती है। टोबैको मोज़ाइक वायरस, टोबैको के प्लांट में राउंड 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 ब्लैक ब्लैक मोज़ाइक वायरल इन्फेक्शन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस इज टू डेवलप inherent quality in the plant to prevent the pathogen from causing the disease. Such varieties of plants are called disease resistant plant. Some disease resistance plants are wheat, brassica, cauliflower, chili. wheat की वैरायटी है हिमगिरी, ब्रासिका की वैरायटी पूसा स्वर्णिम, कॉलीफ्लावर की पूसा सुब्रा, चिली की पूसा सदाबहार। अभी वीट जो होता है दैट रेजिस्टेंस टू डिसीज, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, हिल बैंड। ब्रासिका रेजिस्टेंस टू डिसीज लाइक वाइट रस्ट। कॉलीफ्लावर ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट, ब्लैक रॉट। चिली, चिली मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। देन होता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन इज अ सडन चेंजेस, हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनोटाइप. It can also be induced by application of chemical mutagens. See, natural mutagens are high temperature, high concentration of CO2, X-rays, UV rays. Chemical mutagens are nitrous acid, EMS, ethyl methyl sulfonate, mustard gas, colchicine, etc. Seedlings or seeds are irritated by CO60, carbon 60 exposed to UV bulb, X-ray machines, etc. Mutagens cause gene mutations and chromosomal aberrations. The treated seedlings are then screened for resistance to disease, pest, high yield, etc. Jagannath variety of rice, NP 836 variety of wheat, rust resistant। ये लोग के अंदर हम म्यूटाजेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं जो सडन चेंजेस लेकर आते हैं, जिनकी वजह से लाइक ये बीमारियां ख़त्म होती हैं। देन प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग अ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे खेती में प्लांट रहता है तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट का, पेस्ट का उनके ऊपर इंसेक्ट और पेस्ट उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे बहुत सारे प्लांट खेती में ही मर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ब्रीडिंग कराएंगे, दो क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को मिक्स कराएंगे, जिससे लाइक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, लाइक हेरी लीव्स निकलेंगे प्लांट में, कॉटन में, वीट में। वो हेरी लीव्स क्या करेंगे, जैसे इंसेक्ट आएगा खाने के लिए वो हेयर उनको इरिटेट करेंगे और इंसेक्ट वहाँ से भाग जाएंगे। सॉलिड स्टेम इन वीट के स्टेम एकदम सॉलिड हो जाएंगे, इंसेक्ट खाने आएंगे, पेस्ट खाने आएंगे, खा ही नहीं पाएंगे।
Biochemical character provide resistance to insect and pest. For example, high aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize. मेज मक्का जब ज़्यादा मीठा रहेगा तो उनको मेज स्टेम बोरर का अटैक ज़्यादा होगा, जो लोग मेज खाते हैं। जब वो कम मीठा रहेगा, कम मीठा मतलब कि उसमें शुगर लो नाइट्रोजन रहेगा, लो शुगर कंटेंट रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, द नेक्टरलेस कॉटन हैविंग स्मूथ लीव डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट बॉलवर्म। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से वो उसको खाएंगे नहीं, उनको मीठा ही नहीं लगेगा तो नहीं खाएंगे। और नेक्टरलेस कॉटन के बॉल, कॉटन के प्लांट्स को भी, कॉटन में ऐसे कॉटन के बॉल निकलते हैं, तो इसमें नेक्टर्स होते हैं। इसमें स्टार्टिंग में मतलब इसमें नेक्टर होता है विच इज़ अ शुगर, विच इज़ अ सुक्रोज। उसको इंसेक्ट्स और पेस्ट आके उसको सक करते हैं। तो जब ये नेक्टरलेस है तो आके कितना भी सक करेंगे उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। ओके। क्रॉप लाइक ब्रासिका, पूसा गौरव, जिनको इंसेक्ट पेस्ट का खतरा होता है एफिड का। फ्लैट बीन, चपटी बीन, पूसा सेम टू सेम 3, हिंदी में उसको सेम भी बोलते हैं, सेम। तो जिसमें जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर, ये इंसेक्ट पेस्ट के नाम है। ओकरा मतलब भिंडी, पूसा सावनी, पूसा A4 ऐसी वैरायटी बनाई है जो शूट और फ्रूट बोरर, जो शूट को और फ्रूट बोरर उसको खाते हैं, उनको उनसे प्रोटेक्ट कर सकें। Okay, so here we finished till this plant breeding. Next lecture we will study with the tissue culture. Okay, hope you all understand the lecture. If you have any doubt, please you can message me personally.